Good evening, everyone. This side Bhavya Joshi from Dashmesh Institute of Research and Dental Sciences, Faridkot, a BDS student. Today's lecture is on chemotherapy and its dental implications. As we all know, chemotherapy क्या होती है, ठीक है? We will be discussing about it and why we are using it. We are all acknowledged by it. We use it to treat the tumors, cancers, and other rapidly dividing cells. So here we begins with a lecture today. So yes. So what is chemotherapy? Chemotherapy होती क्या है? Why we are doing it? And what are the types and how it works? So chemotherapy are the that targets the rapidly dividing cells. जो हमारी बॉडी में rapidly dividing cells होते हैं, ये basically उसको टारगेट करती है, इंक्लूडिंग कैंसर और कुछ हमारे हेल्दी सेल्स को भी ये टारगेट कर देती है. Used alone or with surgery and radiations. We all know कि कीमोथेरेपी अकेली भी दी जाती है, with सर्जरी भी दी जाती है एंड इन रेडिएशंस के साथ भी इसको दिया जाता है. बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपीज, दैट इज क्यूरेटिव, पैलिएटिव, एडजुवेंट एंड नॉन एडजुवेंट. ये वर्क करती है डिफरेंट फेसेस ऑफ अ सेल साइकिल. ठीक है. सो यस. सो टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी. जो क्यूरेटिव है, दैट एम्स टू एलिमिनेट कैंसर. इसका एक ही एक फोकस है, इसका एक ही एक मकसद है, क्या कि इसने बिल्कुल कैंसर को खत्म कर देना है. नेक्स्ट इज पेलिएटिव. ये रिड्यूस करता है सिम्टम्स को और एक लाइफ पर्सन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. द नेक्स्ट इज एडजुवेंट. ये सर्जरी से बाद दी जाती है. ठीक है, सर्जरी होने के बाद दी जाती है, ये रेडिएशन होने के बाद दी जाती है, बिकॉज to prevent the reoccurrence of the cancer or the tumor or the rapidly dividing cells या related to that. Next is non-adjuvant, given before the surgery. ये surgery से पहले दी जाती है to shrink the size of the tumor or the cancer. Like in simple case we can take a example of breast cancers में, जैसे दैट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स. तो क्या करते हैं सम डॉक्टर्स, लाइक दे गिव कीमोथेरेपीज बिफोर डूइंग द सर्जरीज जस्ट टू श्रिंक द साइज so that it can be easier to remove and do the other procedures. And here comes the combination of chemotherapy. Why we use combinations? Because एक तो मल्टीपल ड्रग्स यूज होते हैं, दैट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कीमोथेरेपी. द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिड्यूस करता है ड्रग रेजिस्टेंस को. एज इफ वी गिव अ सिंगल डोज अगेन एंड अगेन, so the body becomes resistant, the cell or the cancer becomes resistant to that, and it won't like कोई effect नहीं होगा. And some combinations are CHOP, ABVD, FOLFOX. CHOP and ABVD is given in case of Hodgkin's lymphoma, and FOLFOX is given in case of rectal cancer. Next are the classifications of chemotherapeutic drugs. The first one is antibacterial agents. इसमें आता है बीटा लैक्टामिन्स. इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, cephalosporins, carbapenems, monobactams. And some of the examples are given in cephalosporin. Cephalehexin में फर्स्ट जनरेशन दी जाती है, सेफ्टेरियोक्सिन में थर्ड और सेफी में फोर्थ जनरेशन है. नेक्स्ट कम्स मैक्रोलाइट्स, जिसमें अरिथ्रोमाइसिन, अजीथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्यूनिनोल्स, सल्फोनामाइड्स एंड मेट्रोनाडाइजोल्स. Next comes the antiviral agents. As we all know,
We use antiviral agents to prevent herpes, influenza, hepatitis, and HIV. So some of the drugs I have written here for anti-herpes is acyclovir, valacyclovir, and rest others are given here as you can see. Next comes the antifungal agents जिसमें polines, azores and ecocadins आते हैं. Antiprotozoal agents, and next are anti-helmintic agents, and here comes the anti-cancer chemotherapy जिसमें आते हैं alkylating agents जिसमें है cyclophosphamide, cisplatin, anti-metabolites and topoisomer inhibitors and mitotic inhibitors. Why we give mitotic inhibitors? Because cell cycle अब जब चल रहा है, as you know, just a moment please. अभी जैसे यहाँ पे वी कैन सी एक सेल साइकिल चल रहा है, ठीक है. अभी इसका इस फेस को, जो ये वाला फेस है, ठीक है, इसको अगर इनहिबिट करना है, ठीक है, माइटोटिक इनहिबिशन होगी, माइटोटिक डिवीजन अगर होगी नहीं तो सेल आगे क्या नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी आगे से नहीं होगा, तो यहाँ पे बंद होगी उसकी. माइटोटिक इनहिबिटर्स ने उसकी डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर दिया. एंड यस. सो नेक्स्ट इज द डेंटल रेलेवेंस ऑफ द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स. तो क्या है कीमोथेरेपिक एजेंट्स की डेंटिस्ट्री में रेलेवेंस? तो एंटीबायोटिक्स इन डेंटिस्ट्री, amoxicillin as we all know we are all using, and it is the first line for odontogenic infections, ठीक है. क्लिंडामाइसिन ऑल्टरनेटिव दिया जाता है टू दी पर्सन्स हु आर पेनिसिलिन एलर्जिक, ठीक है. एंड metronidazole used for anaerobic infections in case of periodontal abscess. Next comes the antifungus in dentistry. Nystatin, first line of defense in case of oral candidiasis, and fluconazole. This is given most commonly in every kind of fungal infection. ठीक है, this is the systematic antifungal for the resistant cases. And next come the antivirals as we study acyclovir, ठीक है, herpes के लिए use होता है as we have discussed in earlier slides. Here comes the most important part, how they act, mechanism of action, how these agents act. First, they do, they damages the DNA, ठीक है. DNA जब डैमेज हो रहा है या डिस्टर्ब कर रहे हैं सेल वॉल डिवीजन को, एज आई टोल्ड देयर आर माइटोटिक इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं विच इनहिबिट्स द माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है. बेसिकली व्हाट दे डू, दे टारगेट द स्पेसिफिक फेस ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, और अफेक्ट करते हैं फास्ट डिवाइडिंग सेल्स इंक्लूडिंग बोन मैरो एंड जीआईटी ट्रैक. इसका मेन काम क्या है? इसने जो डीएनए सिंथेसिस है, जैसे डीएनए है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, डीएनए सिंथेसिस को इसने रोक दिया, डैमेज कर दिया. अगर डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही प्रॉपरली तो आगे डिवीजन नहीं हो पाएगी, एंड हेंस इट डिस्टर्ब्स द सेल डिवीजन. नाउ we move to the other slide. ओके, हियर वी कैन सी बैक्टीरिया सेल वॉल है, एक है ट्यूमर सेल, ठीक है, बैक्टीरिया सेल है और एक ट्यूमर सेल है. इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, व्हाट वी कैन रिकॉग्नाइज इसमें इजली, यहाँ पे देखो इनिबिशन कर रहा है सेलुलर सेल वॉल को, ठीक है. इसमें मेन काम कौन दे रहे हैं? बीटा लैक्टमेंस, ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, साइक्लोसेरिन. अभी क्या हो रहा है? ऑल्टरेशन हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? सेकंड स्टेप, इसमें ऑल्टरेशन हो रही है ऑफ एक्सटर्नल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की, ठीक है. उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? इनहिबिशन कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस को. अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो आगे डिवीजन होने का बात ही नहीं है. प्रोटीन सिंथेसिस को कौन कौन इनहिबिट करता है? मैक्रोलाइज, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफ फिनिकोल, ठीक है, एक्सेट्रा. अब आ गया नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द इनहिबिशन ऑफ डीएनए या आरएनए. अगर इनहिबिट ही कर दिया, उसका जेनेटिक मटेरियल उसको मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहा,
ठीक है। दीज डू रीवा मेसन क्यूनिकॉल्स, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स। अभी ये बैक्टीरिया सेल वॉल के ऊपर बताया है कैसे ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल एक बैक्टीरियल सेल वॉल है। अब आता है ट्यूमर सेल। अभी ट्यूमर सेल में क्या हो रहा है, इनिबिशन कर देंगे अगर वो डीएनए या आरएनए की सिंथेसिस की, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन या सिंथेसिस ही नहीं होगा, ठीक है, तो इट वुड बी मोर इजियर फॉर अस टू किल द फॉर किलिंग दैट ट्यूमर सेल, ठीक है। अभी एंटी ट्यूमरल एजेंट जो है, ठीक है, वो एक रिसेप्टर पे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद उसने इनिबिट कर देनी है सेल की प्रोलिफरेशन बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिवेशन। जब उसने ब्लॉक ही कर दी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, ठीक है, तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कैसे उसने ब्लॉक किया है। ओके। सो अगला हमारा क्या है, अगेन इट इज शोइंग द सेम थिंग। अभी सेल वॉल पे कौन कौन से एक्ट करते हैं हमारे, बेसिकली बीटा लैक्टेमिन्स, उसके अंदर आता है पेनिसिलिन्स, ठीक है। फिर आ गया ग्लाइकोपेप्टाइड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी हमारे एक्ट कर रहे हैं, लाइपोपेप्टाइड, पॉलीमाइसिन्स। अभी राइबोसोम्स पे भी एक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, टेट्रासाइक्लिन कर रहा है। 30 सब यूनिट पे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एक्ट कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन एक्ट कर रहे हैं इनहिबिट करने को उसका। फिर 50S पे मैक्रोलाइट्स कर रहे हैं। और डीएनए सिंथेसिस को जैसे हमें बताइए फ्लोराक्यूनोस, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस के लिए रीवामाइसिन्स। मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर मेटाबॉलिक पाथवे उसका ब्लॉक नहीं होगा तो डिवीजन चलती रहेंगी, उसको मिलती रहेगी एनर्जी। फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है, सल्फोनामाइड, सल्फोनाजोन, ट्रेप्टोम प्राइम, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है, इनको रोकना जरूरी है। तो ये सब कैसे रुकते हैं अभी फॉलिक एसिड की सिंथेसिस रोकने के लिए व्हाट वी गिव सल्फोनामाइड्स, ठीक है। और माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस रोकने के लिए आइजोनासाइड्स, ठीक है। सो यस। अभी मैकेनिज्म ऑफ सेल डिस्ट्रक्शन बाय कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है। फर्स्ट इज द सेल वॉल इनहिबिशन, बैक्टीरियल साइडर ड्रग्स व्हाट वी विच वी आर गिविंग। फर्स्ट इज बीटा लैक्टमिन्स, उसके अंदर आ गया पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स एंड वेनकोमाइसिन। अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसने इनहिबिट करना है पेप्टिडोग्लाइकिन ग्लाइकिन के सिंथेसिस को। कैसे करेगा, सेल वॉल को वीक करेगा और लाइसिस हो जाएगी। सेल वॉल अगर लाइस होगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिस्ट्रक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट कम दी मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। अभी ये फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियासाइडल है, ठीक है। ड्रग्स हम इसमें दे रहे हैं एम्फोटेरासिन्स बी, पॉलीमाइसिन्स। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पहले वाले में क्या हो रही है, पहले वाले में हमारी इनहिबिट करे पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस। जब पेप्टिडोग्लाइकन, व्हाट इज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ, सेल वॉल हमारी बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। जब उसकी सिंथेसिस को ही हमने इनहिबिट कर दिया तो सेल वॉल वीक हो जाएगी एंड एट द एंड इट विल रिजल्ट इन लाइसिस। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी मेम्ब्रेन है डिस्टर्ब कैसे होगी, उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे मेम्ब्रेन के अंदर। जब मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट हो, ऑल्दो देयर विल बी आयन चैनल लीकेज, आयन चैनल्स की जब लीकेज हुई सोडियम पोटेशियम्स की, जब वो एक दूसरे के अंदर बाहर बहुत सारे आयन चैनल्स लीक हो गए, इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सेल। Next come the protein synthesis inhibition, which is bacteriostatic and bactericidal. So which drugs we are given for 30S, we are giving aminoglycosides as we have discussed, and macrolides for 50S ribosomes and tetracyclines. What it does, पहले इसने जो हमारा ये राइबोसोम है, ठीक है, इसने इसके ब्लॉक कर दिया इसके फंक्शन को। नो प्रोटीन, ठीक है, सिंथेसिस नहीं हो पाया प्रोटीन का, स्टारवेशन होगा एंड डेथ हो जाएगा फिर एट द एंड। So here it has been depicted very well as you can see in this diagram, ठीक है। आराम से तुम लोग देख सकते हो ना इसमें जैसे। सो व्हाट दे आर गिविंग, अभी जैसे इसने क्लोरा एम्फिनिकॉल दिया है, ठीक है, इसमें इसने दिया क्लोरा एम्फिनिकॉल, ठीक है, वो बाइंड कर गया
50s राइबोसोम्स के साथ। जब वो 50s राइबोसोम के साथ बाइंड किया, उसने इनहिबिट क्या किया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को उसने इनहिबिट कर दिया। जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इनहिबिट हो रही है तो आगे सिंथेसिस नहीं होगी, इनहिबिशन उसने वहीं रोक दी, उसका खेल वहीं खत्म हो गया ना। जैसे तुम इसमें देख सकते हो, इसमें बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में, आरएनए डीएनए के बारे में ही समझाया हुआ है स्लाइड में। मैक्रोलाइज, क्लिंडामाइसिन, ठीक है, इन्होंने ब्लॉक करना है पॉलीपेप्टाइड को, ठीक है, एग्जिट करना है टर्नल को, ठीक है, ये जो टर्नल दिख रहा है तुम्हें, इससे एग्जिट किया, प्रिवेंट कर दी पेप्टाइड चेन की इलॉन्गेशन को, ठीक है, वहीं पे उसने रुक गया, वहीं पे उसका काम खत्म। अभी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है, टू 30s सब यूनिट, ठीक है। कॉजेस क्या करेंगे, कॉजेस एमआरएनए का कोडोन टू बी मिसस्प्रेड, ठीक है, इंटरफेयर विद द इनिशिएशन, इंटरफेयर कर दिया उसने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने से उसकी, किसकी, 30s और 50s राइबोसोम का विद एमआरएनए, ठीक है। अब आ गया टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स में क्या हो रहा है, बाइंड करते हैं वो 30s के साथ, 30s राइबोसोम के साथ उसने बाइंड किया, उसने फिर क्या करना है, बाइंड करने के बाद इंटरफेयर कर देना उसने उसकी ट्रांसक्रिप्शन को, टीआरएनए से, ठीक है, टू राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। फिर आ गया लेंसोलाइड, ठीक है, इसने भी अगेन बाइंड करना है, इसने बाइंड किसके साथ करना है, 50s के साथ, राइबोसोम के साथ, प्रिवेंट करनी फॉर्मेशन किसकी, 50s या 30s राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स की। सो बेसिकली ये जो एक्ट करेंगी, इन्होंने अपने राइबोसोम पे जाके एक्ट करना है, जो राइबोसोम्स हैं अपने 50s या 30s के साथ इसने कंबाइन हो जाना है, बाइंड कर जाना है, इसने बॉन्ड बना लेना और फिर प्रिवेंट करनी है बेसिकली उसकी फर्दर इलोंगेशन, उसकी ट्रांसक्रिप्शन रोकनी है, फॉर्मेशन रोकनी है। सो यस, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अभी जो इसकी अगली स्लाइड है, अगेन आगे वही चीज, डीएनए सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन करनी है, साइटोटॉक्सिक होगी और बैक्टीरिया साइलेंट होगी। इसमें ड्रग्स कौन से हम ले रहे हैं, फ्लोराक्लिनोलॉन्स, मेट्रोलानजाइन, सिस्प्लैटिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, इनहिबिट करना है डीएनए रेप्लिकेशन को एंड रिपेयर करना है, ठीक है। एट देन अपोप्टोसिस हो गया, अपोप्टोसिस विल रिजल्ट इनटू द सेल डेथ, ठीक है। मेटाबॉलिक इनहिबिशन बैक्टीरियोस्टैटिक है और साइटोटॉक्सिक है। इसमें ड्रग्स हम कौन से दे रहे हैं, सल्फोनामाइड्स एंड मेथोट्रेक्सेट। अब जैसे हमने बात की थी, अगर मेटाबॉलिज्म ही उसका बंद किया जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी जब सेल की, तो एट द एंड नो डीएनए फॉर्मेशन, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में यही बताया कि ब्लॉक करता है फॉलिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को, जिससे कोई डीएनए नहीं बना तो सेल डेथ में रिजल्ट किया। अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अभी उसका एक ये समरी है छोटी सी, सॉरी, इसमें बताया जा रहा है इनहिबिशन हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस, किससे हो रही है, राइबोसोम से, इनहिबिशन हो रही है ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस की, डीएनए, कहाँ कहाँ कौन सा ड्रग एक्ट करेगा सो दैट उसकी इनहिबिशन हो। अगर इनहिबिशन करनी है प्रोटीन सिंथेसिस की, राइबोसोम पे हमारा ड्रग एक्ट करना चाहिए। अगर इनहिबिशन करनी है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की तो किस पे करेगा, डीएनए पे। इनहिबिशन करनी है सेल वॉल सिंथेसिस की, ऑल दो सेल वॉल पे ही करेगा, ठीक है। अगर सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट करनी है तो सेल वॉल पे ही हमारा एक्ट करेगा। एक्ट करने के बाद अभी डिस्ट्रप्शन करनी है सेल मेम्ब्रेन की एंड फंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन जब डिस्टर्ब होंगे, लीकेज हो जाएगी आयन, जिससे सेल डेथ होगी ऑल दो। सो सेम वही चीज आ गई, सेल मेम्ब्रेन को हमने उसका फंक्शन को ही डिस्टर्ब कर दिया, सेल मेम्ब्रेन पे ही ड्रग एक्ट करवाएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक कर दो पाथवे को, इनहिबिट कर दो मेटाबॉलिज्म को, जैसे हमने पढ़ा फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो, तो डीएनए आरएनए बनेगा ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो होने का फिर कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। अभी ये तो सबको पता है कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट इज नोजिया, वॉमिटिंग, इम्यूनोसप्रेशंस एंड इन्फेक्शन, हेयर लॉस। एज वी हैव सीन मोस्टली केसेस में लोगों के बाल चले जाते हैं, कहीं के भी बाल हों, पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं, ठीक है, सिर के हों, आईब्रोज हों, कुछ भी हो, चला जाता है। अभी बंदे की बॉडी पे इतना हम अत्याचार कर रहे हैं, एक तरह से अत्याचार तो क्या है देखो, है ना, उस पे इतना बॉडी के लिए अत्याचार है, ठीक है। अगर तुम ऊपर से आके कोई थेरेपी दे रहे हो तो बंदे में वीकनेस आएगी, फिटीग होगा। अभी
डेंटल उसमें हम जाएं तो म्यूकोसाइटोसिस होगा, ओरल अल्सर्स होंगे, ओरल अल्सर्स होंगे, छाले पड़ेंगे, बंदे को डिस्गेसिया होगा, कितना कुछ होगा, उसका टेस्ट चला जाएगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, उसको पानी तक कड़वा लगेगा। अभी डेंटल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, एज बीइंग अ डेंटिस्ट हम कैसे इसकी डेंटल मैनेजमेंट करेंगे ऑफ कीमोथेरेपी? पहले क्या करेंगे हम? प्री ट्रीटमेंट करेंगे, प्री ट्रीटमेंट डेंटल एवोल्यूशन एंड प्रिवेंटिव केयर। ठीक है, पहले तो हम प्री ट्रीटमेंट कर लेंगे डेंटल एवोल्यूशन, ठीक है, प्रिवेंटिव केयर दे देंगे, भाई तुम ऐसे ऐसे कर लो, तुम माउथ वॉश यूज करो, तुम ये यूज करो, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तुम क्या करोगे, मैनेज करोगे ओरल इन्फेक्शंस को बिफोर कीमोथेरेपी। अगर बंदे को कोई ओरली इन्फेक्टेड है, कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो तुम पहले वो उसका देखोगे। मेन थिंग तुम क्या करोगे, अवॉइड इन्वेसिव डेंटल प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अगर किसी की एक्सट्रैक्शन है, किसी की कोई माइल्ड सी सर्जरी, तुम पहले वो अवॉइड करोगे। यूज एंटी माइक्रोबियस माउथ रिंस एंड सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, जैसे बताया था। माउथ वॉश यूज करेंगे, सलाइवा सब्स्टिट्यूट वी कैन गिव द लॉन्जेस, ठीक है। सॉरी। अभी क्लोज कोलैबोरेशन हमें किसके साथ करनी चाहिए, उस बंदे के ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, किसके लिए, फॉर द सेफ डेंटल क्लियर। ठीक है, ये होंगी हमारी डेंटल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट फॉर, ठीक है। अभी आ गया मेन चीज जिसके लिए हम सब ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, दैट इज डेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी। अभी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रिस्क इन्फेक्शन का ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसेंस। कीमोथेरेपी दे रहे हो, बंदे की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या क्या हो सकता है? सबसे मेन चीज होगी उसको जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ होगा तो पता है केरीज होने के चांसेस हैं। ओरोम्यूकोसाइटिस, पेनफुल अल्सर्स हो जाएंगे मुंह में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी, बंदे से कुछ खाया पिया वैसे ही नहीं जाएगा। डिलेड वूंड हीलिंग आफ्टर डेंटल प्रोसीजर, जैसे तुम्हें बताया कि तुम एक्सट्रैक्शंस हो गए या और जो भी प्रोसीजर है तुम अवॉइड करो, क्योंकि वूंड हीलिंग डिले हो जाएगी। ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के कारण। अभी ओरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी में क्या है, जैसे पढ़ा, म्यूकोसाइटिस, पेनफुल अल्सर्स इन ओरल कैविटी, कैंडियासिस, फंगल इन्फेक्शंस होंगे ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसेंस। अभी बंदा इम्यूनिटी उसकी लो है, उसको फंगल इन्फेक्शंस जल्दी होंगे, डिस्केसिया, ऑल्टर्ड ऑफ टेस्ट परसेप्शंस, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, ठीक है, रिस्क इन लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी होता है जो। अभी प्रिवेंट कैसे करने, मेन चीज, ठीक है, अभी तो हमने ये सब पढ़ लिया, अभी क्या क्या होता है, कैसे होता है, अब उसको प्रिवेंट भी करना है हमने, उसके ओरल साइड इफेक्ट्स को कैसे करेंगे। सब तो पहले तो अपने पेशेंट को बोलो तुम एक अच्छी हाइजीन को करो, ठीक है, मेंटेन बिफोर एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। यूज टूथपेस्ट जो माइल्ड टूथपेस्ट होते हैं, अवॉइड फ्लोराइड्स, ठीक है, ये सब अवॉइड करो तुम, SLS फ्लोराइड्स को। अवॉइड अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस, ठीक है, बेसिक थिंग, अल्कोहल को रिड्यूस ही कर दो, बिल्कुल खत्म ही कर दो जैसे हमें बताया जाता है, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड, जितना तुम पानी पियोगे उतनी तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कम होगी, ठीक है। यूज सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स फॉर जीरोस्टोमिया, ठीक है। ठीक है, टॉपिकल एनेस्थेटिक एंड कोटिंग्स फॉर म्यूकोसिटिक रिलीफ, ठीक है, तुम टॉपिकल एनेस्थेटिक दे दो, कोटिंग्स दे दो अल्सर रिलीविंग के लिए, ठीक है, अल्सर से आराम आने के लिए तुम उसको दे दो पेस्ट जो भी तुमने देना है या कोई भी ऑइंटमेंट है, ठीक है। अभी आता है डेंटल केयर बिफोर कीमोथेरेपी, तुम कैसे उसकी डेंटल केयर करोगे कीमोथेरेपी होने से पहले। कंडक्ट थ्रू ओरल एग्जामिनेशन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नॉन रिस्टोरेबल टीथ टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, तुम पहले अगर उसकी कीमोथेरेपी जब शुरू नहीं हो, मैंने क्या बोला है, कीमोथेरेपी के बीच में नहीं तुमने कुछ भी प्रोसीजर करना, क्योंकि वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। जब उसने पहले थेरेपी उसकी शुरू होनी है उससे पहले ही तुम उसकी नॉन रिस्टोरेबल टीथ को एक्सट्रैक्ट कर लो, सो दैट इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाए, इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा तो कितनी डिजीजेस से वो बचेगा, ओरल डिजीजेस से।
ट्रीट पेरियोडोंटल डिजीजेस एंड रिमूव पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे तुम्हें बताया क्योंकि बंदे की इम्यूनिटी डाउन है तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे उसके इन्फेक्शंस, ठीक है, उसको और हार्म करेंगे। प्रोवाइड फ्लोराइड थेरेपी फॉर केरीज प्रिवेंशन, ठीक है, तुम उससे पहले ही उसको फ्लोराइड थेरेपी दे दो। अभी आ गया ड्यूरिंग, ठीक है, अभी तुम कैसे करोगे पेशेंट की क्लियर। अवॉइड इन्वेसिव डेंटल प्रोसीजर्स, ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिव ट्रीटमेंट जैसे बताया है। मैनेज ओरल इन्फेक्शंस को तुम मैनेज करो विद एंटीबायोटिक्स एंटी फंगस, क्योंकि बंदे की इम्यूनिटी वैसे ही सप्रेस है। मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। इनकरेज जेंटल ओरल केयर प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज इरिटेशन, क्योंकि अल्सर्स होंगे ये सब होगा तो इनकरेज करो पेशेंट को कि तुम ओरल हाइजीन पे ज़्यादा फोकस करो, सो दैट तुम्हारा जो खाने पीने का है टेस्ट वगैरह जो भी है तुम्हें मुंह में ना प्रॉब्लम हो। देखो बंदे ने जो भी लेना है, डाइट लेनी है उसने मुंह से ही लेनी है, कितने ही कोई ड्रिप्स लगवा लेगा या कुछ कर लेगा, सो दैट अगर तुम्हारे मुंह का टेस्ट ही नहीं अच्छा, डिस्गेसिया हो रहा है तो तुम्हें, है ना, तो तुम्हें खुद को नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, पेशेंट विल गेट इरिटेट। तो उसकी इरिटेशन को कम करने के लिए उसको समझाओ कि तुम अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करो, सो दैट तुम्हें भी ट्रीटमेंट लेना इजी हो। अभी आ गया आफ्टर डेंटल केयर, हम आफ्टर कैसे करेंगे, ठीक है। ग्रेजुअली उसको री इंट्रोडक्शन दो रूटीन डेंटल ट्रीटमेंट्स की, ठीक है। मॉनिटर करो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाइक जीरोस्टोमिया एंड ऑस्टियो नेक्रोसिस जॉ का, ठीक है। रेगुलर डेंटल विजिट करो फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कोलैबोरेट करो उसके ऑन्कोलॉजी टीम के साथ फॉर सेफ इनोवेशंस, ठीक है। अभी एडवांसमेंट इन कीमोथेरेपी क्या है, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में टारगेट थेरेपीज होती हैं, ठीक है। ये जो टारगेट थेरेपी है दैट विल जस्ट टारगेट अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ठीक है। टारगेट का क्या मतलब होता है, हमने सिर्फ एक लक्ष्य देखा है, सिर्फ उस पे ही हमने पूरा ध्यान देना है। इम्यूनोथेरेपी बूस्ट करो इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। तुम आगे दवाइयां दे रहे हो, उसने इम्यूनो सप्रेस कर दिया बॉडी को, ठीक है, कीमो ने, तो तुम उसको इम्यून थेरेपीज दो, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दो। नैनो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स, ठीक है। जीन थेरेपी रिसर्च एक्सप्लोरिंग डायरेक्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या बना हमारे में उससे, कीमोथेरेपी एक वाइटल कैंसर ट्रीटमेंट है विद सिस्टमिक इफेक्ट्स। डेंटल केयर क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है एक बंदे की उसमें इन मैनेजिंग दी कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स। एक बंदा आगे सफर कर रहा है, अगर तुम उसका मुंह का टेस्ट अच्छा रख रहे हो, उसको अल्सर से प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ऑल दो बंदे को थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा ना। अगर बंदा कुछ खा नहीं पा रहा कर नहीं पा रहा, आगे उसमें वीकनेस है, आगे वो फिटीकनेस से सफर कर रहा है। अगर बंदा कुछ खा नहीं पा रहा कर नहीं पा रहा, उसकी और हालत खराब होगी, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाएगा वो बंदा। सो यू शुड लाइक हेल्प द पेशेंट इन दोज वे, इसलिए कहा गया डेंटल केयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज दो, इंटरडिसिप्लिनरी कोलेब्रेशन करो उसके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। एडवांसमेंट्स कंटिन्यू टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। अभी एडवांसमेंट जैसे जैसे होती जाएगी वो इम्प्रूव करेगी उसकी ट्रीटमेंट आउटकम्स को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। सो यस, हियर we end our webinar by this, and thank you for all attending it. If anyone has any questions, any queries, you are free to ask. Please feel free to ask. I'm here to answer your questions. And yes, thank you all. It was nice giving you this good lecture. ठीक है, I hope you all have learned something from it, and yes, you should practice this in your day-to-day life, and it would be very helpful for the patients who are undergoing the chemotherapies. So yes, by this we end our lecture. Thank you all for staying with me for this long time.